Hello everyone, I am Komal Mehta, teaching as an assistant professor in computer science department at St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. Today in the series of structured analysis course, we will cover about the designing phase. As we already discussed about the life cycle and covered the feasibility phase and the requirement analysis. Now the next step is a system designing, and what is the basic objective of the designing. What do you mean by logical and the physical designs? So these are the types of designing. Let's start with the system designing. It is basically a solution, that is how to approach or the how to perform what we want to do. That means whenever we have to select the proposed system or a new system instead of the existing one, then how can we implement that one will be focused by the help of designing. So we here focus on a how to approach the creation of a new system. That means it providing the understanding and the procedural details necessary for the implementation on the system recommended in the feasibility study. Right. Once that will be done, we have to face the another step, that is called a implementation phase. So emphasizing that means special care or attention is on translating the performance requirement into the design specification. Once the requirements will be done, we have to focus on the designing phase. So here the special care is on designing phase. That means that is done with the help of multiple stages, that are the logical stage and the physical stage of the development. So the logical stage or logical designing representing the views of the present physical system, prepare the input output specifications, make editing, security and control specifications, detail the implementation plan and prepare a logical design walkthrough. But in the designing phase of a physical criteria, then the map out all the details of the physical system, planning of the implementation, devising a test and the implementation plan, and specifies a new hardware or a software. That means what we actually requires will be focused on a physical designing, but what the coding will be required, what the logical criteria will be required, will be focused on a logical design. So the basic objective of designing is to focus on the implementation phase that recommended in the feasibility study. Emphasizing is on translating the performance specification and the design specification. Once that will be done, that are transferred into the design specification. And the designing phase is the translation from a user oriented document system proposal to the document oriented to the programmer or a database person. So we can say in the designing phase we have to focus on the logical and the physical one. Logical में आपको ये चीज check करनी है कि whether this particular implementation is done with the help of what criteria, कौन सी security चाहिए, क्या logic आपने apply करना है, इस requirements के basis पर क्या ये चीज applicable है या नहीं है, ये सारा कुछ check करने के लिए आप logical designing phase पे जाएंगे. बट अगर आप फिजिकल डिजाइनिंग की बात करें तो आपको क्या क्या हार्डवेयर चाहिए, कितने हार्डवेयर चाहिए, हार्डवेयर के बाद और क्या अदर रिक्वायरमेंट्स है, ये सब कुछ चेक करने के लिए आपको फिजिकल फेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. सो वी कैन से वी हैव अ टू डिजाइनिंग, दैट इज लॉजिकल एंड द फिजिकल वन. So when analysis prepare the logical system design, they specifies the user need at the level of detail that virtually determining the information flow into and out of the system and the required data resources. So that will be done with the help of this analysis. Now we can say the designing will cover some criterias. Firstly, review the current physical system. जो आप currently काम चल रहा है उस चीज को पहले आप चेक करोगे, तभी आप डिजाइनिंग फेज में इम्प्लीमेंट करना चाहोगे. तो पहला जो पहले इनिशियली काम चल रहा था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसकी चेक करोगे फाइल्स, उसकी चेक करोगे कितनी फ्रीक्वेंसी में वो काम कर रहा था, किस स्पीड से वो काम कर रहा था और कैसे कैसे उसमें डेटा मूव हो रहा था. Once that will be done, we will prepare output specification that determining some specific format content of a report. Once that will be done, now पहले वाले के बारे में आपको पता चल गया, पहले क्या चल रहा था, क्या रिपोर्ट्स थी, उसके बेसिस पर आपने आउटपुट भी निकाल लिया था, मीन्स कंक्लूजन निकाल लिया था पहले वाले से क्या मिला. अब आप जो नया करना चाहते हो उसके लिए आप नया इनपुट स्पेसिफिकेशंस ट्राई करोगे, अप्लाई करोगे, फॉर्मेट क्या रखोगे, कंटेंट क्या रखना है,
क्या क्या फंक्शंस आपने अप्लाई करने हैं, ये सारा कुछ चेक करोगे। वंस दैट विल बी डन, अब आपको कुछ पैरामीटर्स उनके ऊपर लगाने पड़ेंगे, जैसे कि सिक्योरिटी होगी, कौन कौन से प्रिविलेजेस किस किस को देने हैं, कौन सा कंट्रोल कहाँ पे मूव करेगा। सो प्रिपेयर एडिट सिक्योरिटी एंड कंट्रोल स्पेसिफिकेशंस, कौन से रूल्स लगाने हैं, बैकअप पे क्या चलेगा, कंट्रोल कौन करेगा, और फाइल की इंटीग्रिटी कैसे होगी। सो वंस दैट विल बी डन, वी विल स्पेसिफाई द इम्प्लीमेंटेशन प्लान। दैट मीन्स उस सब सारे कोर्सेज कंप्लीट होने के बाद, वो सारा कुछ फेज कंप्लीट होने के बाद, अब आपने नया इम्प्लीमेंट करना है। सो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये चीज डिस्कस की जाएगी। वंस preparation of a logical design, walkthrough of the information flow, the output input control and implementation plan will be covered। एक बार जब डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम किस चीज पे फोकस करेंगे, आउटपुट पे। क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या इनपुट देने पर हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, क्या क्या कंट्रोल्स हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस है, ये सारा कुछ चेक किया जाएगा। वंस दैट विल बी डन, वी विल रिव्यू अबाउट द बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट और अ टारगेट डेट एंड द सिस्टम कांस्टेंट। दैट मीन्स मैंने कितना अपना कॉस्ट लगाया, लगाने के बाद मुझे कितना बेनिफिट हुआ, किस डेट तक में मुझे टाइम, किस ड्यूरेशन तक में मुझे वो बेनिफिट चाहिए था, क्या वो उतने ड्यूरेशन के अंदर अंदर मुझे मिला है, अगर मिला है तो वेल एंड गुड, दैट्स कॉल्ड अ बेनिफिट। बट अगर उस टाइम बाउंड के अंदर नहीं मिला तो कितना ज्यादा मुझे एक्सटेंड करना पड़ा, कहीं उससे मुझे कोई लॉस तो नहीं हुआ, सिस्टम की कहीं रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स मुझे जितनी यूज करनी थी मैंने उससे ज्यादा तो नहीं कर ली, जो कुछ भी सिस्टम के और अदर कॉन्स्टेंट्स हैं उन सारी चीजों को प्रॉपर यूटिलाइज किया है या नहीं किया, ये सारी चीजें आप उसके बाद चेक करेंगे। वंस ऑल द रिव्यू विल बी डन, दैट मीन्स डिजाइनिंग phase will be done completely। So we can say whenever we have to focus on a designing phase, we will focus on a implementation phase as well। So we can say once logical designing will be done, then the physical designing will be focused। logical designing में आप क्या करोगे, क्या क्या चीजें आपको चाहिए आप ये चेक करोगे, मतलब सिस्टम की क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है आप ये चेक करोगे। वंस दैट विल बी डिटरमाइंड, प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस विल बी फोकस्ड, दैट मींस फिजिकल डिजाइनिंग विल बी फोकस्ड, क्योंकि एक बार आपको उसके अंदर का लॉजिक पता चल गया, उस लॉजिक के बेसिस पर जो आपने इम्प्लीमेंट करना है वो आप फिजिकली डिजाइनिंग में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम फॉर दिस वन। देखो, इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशंस मींस इनपुट कैसे मिल सकता है और आउटपुट कैसे मिल सकता है। सिस्टम की जो लेआउट है, स्क्रीन का कुछ ना कुछ लेआउट होगा, इनपुट आउटपुट लेआउट फॉर्म होगा, उन दोनों के बेसिस पर आपको इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे, रिक्वायरमेंट्स मिलेगी। फाइल स्पेसिफिकेशन किसके थ्रू मिलेगी, फाइल स्पेसिफिकेशन फॉर्म के थ्रू मिलेगी। और वेन एवर वी हैव टू प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, वी विल डन इट विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट लेआउट, क्योंकि एक रिपोर्ट बनी होगी, उस रिपोर्ट के बेसिस पर ही आप कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करेंगे। once you get all the information about the previous one or already existing one, we can say we will convert it into the प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, जो चीज हम बनाना चाहते हैं उस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें ऐड होंगी, ये सारी चीजें। डेटा एंट्री क्या क्या करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या क्या इंक्वायरीज हो सकती है, फाइल्स कितनी पड़ी होंगी, कौन कौन सी होंगी, उन्हें अपडेट करा है या नहीं किया, इट मीन्स कंसिस्टेंसी है या नहीं है, मेंटेनेंस है या नहीं है, उसका कोई बैकअप रखा हुआ है, रिकवरी सोर्स, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि कभी कोई फाइल ओमिट आउट हो गई या मिसप्लेस हो गई। सो वी मस्ट हैव अ बैकअप प्लान ऑल्सो। सो जब आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा, उस कंप्लीशन के बाद आप उन सारी फाइल्स को एक साथ रखेंगे, उन सारी फाइल्स को एक साथ रखने का मतलब है सेकेंडरी स्टोरेज में रखा जाएगा। सो वहां पर एक मास्टर फाइल होगी, एक ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, और एक डोमेन, जितनी भी स्मॉल माइनर ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, दैट विल बी फोकस। सो वी कैन से physical design produces the working system by defining the design specification that tells programmer exactly what candidate system wants to do। क्योंकि आपने जो करना है वो एक्चुअली कौन बताएगा, फिजिकल डिजाइन बताएगा। फिजिकल डिजाइन एक लेआउट क्रिएट कर देगा जिसमें वो प्रॉपर डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशन देगा एग्जैक्टली कि एक्चुअल में सिस्टम को क्या करना है। The programmer writes the necessary programs or modify the software package that accept input from the user and perform necessary calculation through the existing file or the database, producing the report of a hard copy and displaying it on a screen to maintaining the updated
डेटाबेस एट ऑल द टाइम। जब भी प्रोग्रामर कुछ भी काम करेगा, जितनी भी उसने मॉडिफिकेशन करनी है, जो कुछ भी उसने अपडेट करना है, दैट अपडेटेड फाइल must be updated in the database also and that will be reflected in the screen also. That means output कहाँ से मिलेगा आपको? screen से मिलेगा and that output will definitely reflected in a screen. So output के साथ साथ वो database में भी updated format में होनी चाहिए ताकि consistency maintain रहे. Consistency means ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फाइल एक जगह तो कुछ और डेटा कंटेन कर रही है, वही फाइल दूसरी जगह पे कुछ और डेटा कंटेन कर रही है. सो दैट मस्ट बी सिमिलर इन बोथ द सिनेरियो. सो डेटाबेस में भी अपडेट होना जरूरी है एज वेल एज आउटपुट स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो भी अपडेटेड फॉर्मेट होना चाहिए. So we can say physical design system consists some steps. What are these one? Firstly, designing the physical system. That means we have to focus on the इनपुट आउटपुट मीडिया. इनपुट के लिए क्या सोर्स यूज करेंगे, आउटपुट के लिए क्या सोर्स यूज करेंगे. डिजाइनिंग द डेटाबेस. जो आपके पास इनपुट आ रहा है, जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो सारी आपके डेटाबेस में होनी चाहिए. उसका कोई ना कोई बैकअप प्रोसीजर होना चाहिए. सो specify the backup procedure also. Designing physical information flow through the system and physical design walkthrough. That means the information will flow in a proper manner within a system. So once the designing phase will be done, then the plan system implementation will be focused. In plan system implementation, a conversion schedule or a target date is prepared. That means एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन दे दिया जाएगा कि इतने ड्यूरेशन तक में आपने ये काम करना है. एंड डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोसीजर, द कोर्सेज एंड द टाइम टेबल. हर कैंडिडेट सिस्टम में मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे, उन सभी का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या क्या कोर्सेज वो कर सकते हैं कवर, एंड कौन कौन सी ट्रेनिंग की उन्हें रिक्वायरमेंट है उस टास्क को फुलफिल करने के लिए. ये सारा कुछ चेक किया जाएगा प्लान सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में. Once that will be done, we will revise a test and implement plan and specify any new hardware software. अगर उसके बाद भी कुछ नया रिक्वायर्ड है, दैट विल बी फोकस्ड और रिवाइज्ड वी कैन से. वंस दैट विल बी डन, अपडेट द बेनिफिट कॉस्ट, कन्वर्जन डेट एंड टाइम, सिस्टम कांस्टेंट. उसके बाद आप ये चीजें चेक करोगे कि क्या क्या बेनिफिट्स आए, क्या क्या कॉस्ट आए, कितने ड्यूरेशन में हुआ एंड सिस्टम की प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ हुआ या नहीं हुआ. सो ऑल दीज विल बी फोकस्ड इन अ डिजाइनिंग फेज. So this is all about the system designing introduction, which includes physical designing and the logical designing. The basic key point about this topic is that what do you mean by a system design? System designing कैसे करते हैं, कौन कौन से phases होते हैं. Physical designing में हम किस चीज़ के ऊपर कंसर्न करते हैं, एंड लॉजिकल डिजाइनिंग में हम किस पे फोकस करते हैं. इन लॉजिकल डिजाइनिंग वी विल फोकस ऑन द actual logic. We will apply whether the security is available, backup is available or not. And but in logical physical design we will focus on the actual implementation. That means कौन कौन से hardware required है, required जो जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल है या नहीं है. वंस all the phases will convert the specifications, then the implementation phase is started. And in implementation phase हम prepare करते हैं पहले already existing one में क्या क्या चीजें थी, उन सारी चीजों को conclude करके एक report generate की जाती है. उस report के basis पर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कंक्लूजन लिखा जाता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का कंक्लूजन क्या था, क्या उसमें लूप होल्स थे. वंस दैट विल बी क्लियर्ड, उन लूप होल्स पे काम करने के लिए नया प्रपोज सिस्टम कर क्या रहा है, व्हाट्स द न्यू थिंग दैट वी विल इंट्रोड्यूस इन आवर सिस्टम सो दैट दिस लूप होल विल नॉट शोइंग इन आवर सिस्टम. सो उस इम्प्लीमेंटेशन में क्या ऐसा नया आ रहा है, आप वो चीज हाईलाइट करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं. वंस दैट विल बी डन, हम एक उस टास्क के लिए एक पर्टिकुलर डेट असाइन करते हैं, पर्टिकुलर कोर्स अगर रिक्वायर्ड है वो करते हैं. वंस दैट विल बी डन, एक शेड्यूल क्राइटेरिया मेंशन कर दिया जाता है जिसको हर थोड़े टाइम के बाद, टाइम बाउंड के बाद चेक किया जाता है, एक शेड्यूल को और टाइम टेबल को. एक बार वो सारा का सारा शेड्यूल सेटअप हो जाता है, उसे रिवाइज करते हैं, चेक करते हैं कुछ और नया रिक्वायर्ड तो नहीं है, अगर रिक्वायर्ड है तो क्या है. वंस दैट विल ऑल्सो डन, नाउ वी विल चेक जितना भी नया काम आप कर रहे हैं उस सारे नए काम से क्या आपकी कॉस्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है उससे जितना पहले मिल रहा था. उसके बाद आप ये चेक करते हैं कि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आपका बेनिफिट कितने ड्यूरेशन में मिल रहा है, और अगर आपके सिस्टम में कोई कमी आ रही है तो वो क्या कमी है, उसे कैसे इम्प्रूव करेंगे
that will be focused. So this is all about system designing. I hope this is clear to all of you. Thank you.